Ah, let's get started. Good morning. It's good evening. आज का जो टॉपिक है वो है Why I chose to fail after setting an impossible goal and chasing it for more than a year. Sometimes I have issue in reading. I have a script here which I have written in 2 days. Still, it's kind of suck. I'm still going to read it to you because I have worked hard so much on this. And I believe that कि जो script होता है, it is better than randomly speaking something because I'm not good at randomly speaking. And also today's vlog is going to be in English because I like English. Let's get started. Welcome to the 69. Welcome to the 16 by 9 aspect ratio of my visual storytelling. Today, I will talk about failure pretty confidently. Actually, I do not want to talk about it because I do not like failure. I hate it. But recently, I failed and I failed big. However, I don't know the meaning of however, but however, I use it anyways. However, I have failed so many times in my life that I have no other choice than to embrace it. Embrace it मतलब कि पकड़ के रखना. Accept it. I have no other choice than to accept it. So I thought, let's write about it. So I wrote about it last night before going to the bed at 2 a.m. Let me take a pause. From the crack of a window just beside my work chair, I peeked outside at the dark. The air was cold but noisy. I loved it. However, I write better in peace. मतलब शांत जगह में मैं अच्छे से लिखता हूँ, अच्छे से सोच पाता हूँ. इसीलिए. So I closed the window to end the noise of the wind from entering my quiet room of 10 by 10, and then I started writing. I wrote about my recent failure, which I surprisingly never accepted. I did not want to give up like a loser, hence I was unnecessarily stretching it like I do. I was unnecessarily stretching it like I do to a tied rubber band, which comes with the food delivery. I think आपको idea लग गया होगा what I am talking about. Anyways, neglecting the fact that my set goal was not relevant to me anymore. But how could I quit on a goal so big? I wanted to win this game, actually. And hence I kept stretching and I kept trying, but aimlessly, like the confused guy I always am. I'm very confused person. But yesterday morning when I woke up at 8, suddenly it did not make any sense anymore. So I decided to write at dusk. ये सोचा कि शाम को लिखूंगा. But you know what? I could not write much. Somehow, I ended up with this one long sentence, which took me more than 3 hours to put down from pen to paper. And it goes like this. After chasing a goal for more than a year, I gave up on it. Because in between the journey, I came to know that the possible outcome after I reached that goal would not meet my original expectations from it. Yes. And hence, I quit. Initially, I was not happy about quitting, but as the hours passed, I felt better. I quit not because it was hard to complete, but because it was not my goal anymore. Sorry. Last year, I was on the road alone for this. All I had with me was just these 4 things: my money, my adulthood, my travel experiences, and my goal. And all of them gave me nothing but freedom. My money gave me freedom to do what I want to do with my time. My money gave me the freedom to do what I wanted to do with my time. My adulthood allowed me to be fearless and take chances. Stay with me, please. My travel experiences allowed me to take my own decisions in every situation as I had no other choice. But my goal mission 1 million, what about it? It taught me not to follow assumptions set by others. Instead, solve your own fucking problem yourself. Follow
the first principle thinking to solve any problem. Second, it taught me to dream big. I would not have gotten 700k subscribers if I did not aim for 1 million, which is true. At last, it taught me whether you succeed or fail, keep going. As 50 Cent once said, get rich or die trying. So, I will die trying, not to get rich, but to buy me my freedom and forever, no matter how long it takes. मम्मी will watch this video and she will tell that कि तुम्हारे बाल को क्या हो रखा है, कटाते क्यों नहीं. मम्मी से मैं कह रहा हूँ ना बहुत दिन से कि मैं कटाना लेकिन मैं कटा नहीं रहा हूँ. आलस बुरी बला है. हैप्पी मदर्स डे. हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हैं. सो टुडे इज़ हैप्पी मदर्स डे. 12th मई है आज, तो मैंने सोचा मम्मी को एक सरप्राइज़ गिफ्ट दे देता हूँ. एंड आई वेंट टू द बार्बर और मैंने बाल कटा लिया. हाउ इज़ इट लुकिंग मॉम? कहोगे कि इतना छोटे क्यों करा लिए. काफ़ी छोटे कर लिए मैंने. सो या गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. अभी तक जितना भी आपने कमेंट किया, लाइक किया, कुछ किया नहीं किया, अप्रिशिएट किया या फिर क्रिटिसाइज़ भी किया, अपना अटेंशन देने के लिए मेरे वीडियोस पर धन्यवाद. थैंक यू. और ये जो जर्नी था मिशन 1 मिलियन का काफ़ी यादगार था और इसे मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा. इस 1-1.5 साल में जितने भी मैंने लम्हे गुजारे हैं बाहर अपने घर के, ट्रैवल करते हुए अनजान लोगों के साथ, दैट इज़ अमेजिंग एंड आई डोंट थिंक एनी मनी कैन बाय इट द सेम एक्सपीरियंस. नेवर. आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट डिसीज़न. और सबसे पहले तो सॉरी, ये पूरा व्लॉग इंग्लिश में है. आई नो कि मेरा जो पूरा व्लॉग सीरीज़ था वो हिंदी में था और अचानक से ये एंडिंग कर रहा हूँ मैं इंग्लिश में. माफ़ कर देना, मैं भूल गया था असल में. और थोड़ा मैं सिंपल रख रहा था. अभी अपनी लाइफ को ना थोड़ा सिंपल तरीके से मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ. आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स. सो इसीलिए जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल था उस चीज़ में मैंने वो स्क्रिप्ट लिखा. एंड हिंदी में भी कंफर्टेबल हूँ काफ़ी. जैसे आप देख रहे हो हिंदी मेरा ठीक है, नॉट बैड, बट कुछ वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में मेरे को ज़्यादा आसान लगते हैं. अपने इमोशंस को व्यक्त करना कभी कभी मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा आसान लगता है हिंदी के मुकाबले, क्योंकि हिंदी में कुछ वर्ड्स है जो कि काफ़ी मुश्किल वर्ड्स है वो, और मेरे को एक्चुअली नहीं पता. इंग्लिश में तो थोड़ा ऑल्टरनेटिव मिल जाता है ना, लेकिन हिंदी में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है मेरे को. अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 756K आउट ऑफ 1 मिलियन. पूरा नहीं हो पाया. 2,44,000 का कमी हो गया, बट दैट्स ओके. ये जो 756K सब्सक्राइबर्स भी हैं सबको बारी बारी से थैंक यू. आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, क्योंकि हर एक जो सब्सक्राइबर्स काउंट था जो बढ़ रहा था वो वैल्यूएबल था इस गोल को रीच करने के लिए, जो अल्टीमेटली पूरा नहीं हुआ, विच इज़ फाइन एक्चुअली. बिकॉज आई थिंक कि अगर आपने कोई गोल सेट किया है एक एक्सपेक्टेशन रख के, और आपको बाद में पता चले कि द थिंग दैट आपको जो एक्सपेक्ट था उस रिज़ल्ट से वो नहीं मिलने वाला, आपको रियलिटी का जो पता है वो बाद में चला, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी बैड थिंग इन चेंजिंग योर गोल. यू कैन एडिट, यू कैन कस्टमाइज योर गोल, विच इज़ व्हाट आई डिड. कभी कभी लगता है कि हाँ पूरा कर लेना चाहिए था, बट अगेन चीज़ों को ख़त्म होने के सेक से, मीनिंग सिर्फ चीज़ों को ख़त्म करना है, जैसे भी ख़त्म करना है, ये जो मैंटेलिटी है ये मेरा नहीं है. आई मीन आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स. आई डू नॉट डू थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग्स. आई डू थिंग्स फॉर द मीनिंग, फॉर द पर्पस बिहाइंड डूइंग इट. आई ऑलवेज हैव द आंसर्स टू माई वाइज. मतलब कि हर एक चीज़ जो मैं करता हूँ उसका एक रीज़न होता है मोस्टली. वैसे काफ़ी अनरीजनेबल भी हो जाता हूँ, वो अलग टॉपिक है. बट तो अभी कुछ महीनों से अभी मैं कोलकाता में हूँ और अभी घर जाने का टाइम आ गया है, लेकिन अभी कुछ दिन और कोलकाता में रहूँगा और अचानक से घर पहुँचूँगा. मम्मी देख रही हैं वीडियो, कमिंग सून.
और वीडियोस का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। शॉर्ट्स या छोटे रील्स जो हैं वो उतने नहीं आएंगे, बिकॉज आई एम फोकसिंग मोर ऑन बिग फॉर्मेट यूट्यूब कंटेंट, जो कि हफ्ते में एक बार आएगा। आई डोंट वांट टू कमिट एंड फेल, आई एम जस्ट सेइंग कि नाउ माय फोकस विल बी ऑन बिग फॉर्मेट कंटेंट विच इज़ ऑब्वियसली यूट्यूब। और आई थिंक जब जब मैं वो एक वीडियो बनाऊंगा तब तक मैं एक छोटा रील भी डाल दूंगा समराइज करके। या जाने से पहले क्या कुछ नहीं, बाय बाय, हो गया। थैंक यू एवरीबॉडी जो भी इंडिया में घूमते वक्त, ये मेरा देश, ये भारत घूमते वक्त मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना पिछले साल, फुल ईयर, एंड आई एंजॉयड लाइक अ बेबी। जहाँ मन करता था वहाँ जाता था, जहाँ मन करता था वहाँ खाता था, वहाँ रहता था, लोगों से बात करता था, वीडियोस बनाता था। और लोग भी इतने अच्छे से मिले मेरे को, क्या बताऊँ भाई। मतलब मेरा लग इतना अच्छा था कि मेरे साथ कुछ टचवुड बुरा नहीं हुआ, बहुत बुरा नहीं हुआ। एंड पीपल वेर सो नाइस, like 99.99% of people were nice and helpful. Especially I want to thank to the northeastern people. नॉर्थ ईस्ट को मैंने जाना नहीं था पहले, पहचाना नहीं था, बट ये जर्नी के बाद, ये मिशन 1 मिलियन ने इसके थ्रू मैं वहाँ गया। एंड इट वाज पहली बार जब मैं नागालैंड में फ़्लाइट मेरी लैंड हुई थी, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और 1 साल 1.5 साल होने को है, वो सीन अभी भी ज़िंदा है मेरे जहन में, अभी भी वो सपना ही लगता है। एंड मैन, ओह माय गॉड, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, साउथ से लेकर नॉर्थ, वेस्ट में तो उतना नहीं गया। आई वेंट टू राजस्थान, दिल्ली साइड गया था, बट जहाँ भी गया, आई थिंक अराउंड 20 states I covered during this 1 year. ठीक है, जाने से पहले मैं अपना फेवरेट जगह का नाम बताता हूँ। देखो, सबसे सुंदर सीन वाइज मतलब प्लेस, जगह को अगर हम लोग मद्देनज़र डिसाइड करें कि कौन सा अच्छा मेरे को लगा, सबसे टॉप 2 में आएंगे तो वो है हम्पी, जो कि कर्नाटका में, और दूसरा है मेघालय। माइंड ब्लोइंग। कनेक्शन के मामले में अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा सिक्किम और नागालैंड। और रहने के मामले में, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे मैं सेटल होना चाहूँगा या मैंने सोचा, देर आर 2 such places. I would say 3 such places. First is Kolkata, second is Visakhapatnam, and then Nagaland. Nagaland has a special place in my heart. Actually, I love that place. Okay, I think we should wrap up now. Sorry for this slow type of conversation. I'm not very good at conversating in English or Hindi, but I tried. अभी देखते हैं ये सफ़र कहाँ ले जाएगी। कहीं भी ले जाए, वहीं से वीडियो बनाते रहेंगे। तो हाँ, जो भी हुआ इन 1-1.5 सालों में, कुछ भी करके, वीडियो अपलोड करके, ट्रैवल करके, लोगों से बात करके, महसूस करके, एहसास करके, जो कुछ भी किया, भाई साहब मज़ा आया। मज़ा तो आया, मज़ा आया। टिंगी डिंगी 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 डिंगी। See you in the next video. Bye bye.